गुड इवनिंग एवरीवन। आयुर्वेदा टीचर्स एसोसिएशन या मंचावर ये जो प्लेटफॉर्म है, इसमें आप सभी का स्वागत है। और आज हम एनटीटी का एक अवेयरनेस प्रोग्राम चालू करने जा रहे हैं। बहुत ही जल्द ये प्रोग्राम अभी चालू होगा। ठीक है। सो मैं देख रहा हूँ अभी डॉक्टर अंकुश, आई थिंक गुड इवनिंग सर। डॉक्टर अंकुश दिकोनवार सर है क्या अभी यहाँ पे? जी, गुड इवनिंग सर। हाँ। तो अंकुश डिकोनवर सर थोड़ा इंट्रोडक्शन देंगे एटीए के बारे में, और माई सेल्फ डॉक्टर लोनारे इनके बारे में। तो आप चालू कीजिए सर। जी सर। हाँ। गुड इवनिंग एवरीवन। आई एम ऑडिबल टू एवरीवन? यस यस, यू आर ऑडिबल। Yeah. Good evening everyone. It is an association working for teachers, faculties of Ayurveda since many years. Now I am going to introduce Dr. Hiteshwar Lonare sir, a versatile Ayurvedic scholar. Embark on a journey of holistic healing with Dr. Hiteshwar Lonare, an esteemed Ayurvedic practitioner and educator. With a rich academic background and a passion for Ayurvedic research, Dr. Lonare sir is committed to imparting profound knowledge and promoting wellness through traditional Ayurvedic practices. Academic excellence. Dr. Lonare holds a bachelor degree of Ayurvedic medicine and surgery and MD in Ayurveda with specialization in Kriya Sharir. He is a PhD scholar in Ayurveda, showcasing his dedication to continuous learning and advancement in this field. Dr. Lunare sir published many research articles in national and international journals, and his research contribution have enriched the global Ayurvedic community. He has authored multiple research articles in esteemed journal, peer-reviewed journal, international journals, expanding the understanding of Ayurvedic principles and practices. He co-authored he co-authored and copyrighted the article Laboratory Analytical Study of Paryushit Anna, that is the stale food in Odanam, which is recognized by Government of India. Dr. Lonare sir written many books. One of them is Sacred Flames, Unlocking the Vajikaran Secrets for Sexual Bliss and Wellness, which delves into the realm of Vajikaran, offering insight into sexual health and well-being from an Ayurvedic perspective. Additionally, he has contributed a chapter to the e-book, which is Role of Manas Mitra Vatakam and Saraswadarishtam for mental health promotion and restoration in COVID-19 patients, addressing mental health concerns during the pandemic. Sir's recent publications include latest book named Ayurveda and Diabetes, a holistic approach to managing Madhumeha, which is diabetes mellitus, explores holistic strategies for managing diabetes through the lens of Ayurveda. Dr. Lonare sir has a solid foundation in academics. Dr. Lonare has served as an assistant professor in the Department of Kriya Sharir, shaping the mind of future Ayurvedic practitioners. His previous role include contributions as a medical officer, hospital administrator, and a consultant physician, reflecting his diverse expertise and commitment to holistic healthcare. So, this is a short introduction of respected Dr. Hiteshwar Lonare sir. थैंक यू अंकुश सर। Yeah, over to you, अभी sir. हाँ, यस। अभी हम ज्यादा समय गवाए बगैर आज का सेशन चालू करते हैं। आई थिंक माई स्क्रीन इज विजिबल टू ऑल।
Yes, sir, loud and clear. Yeah. So we will start the session. Okay. आज का सेशन एक इम्पोर्टेंट सेशन रहेगा इन द ऑल टीचर्स लाइफ। हमारा जो आयुर्वेदा टीचर्स एसोसिएशन है, जो टीचर्स के लिए अच्छा काम करे जा रहा है, उसका भी स्टूडेंट के लिए भी स्टूडेंट फोरम के लिए ये स्पेशल है, क्योंकि आप भावी डॉक्टर्स, भावी टीचर्स एंटर करने वाले हैं इन द एकेडमिक्स। तो एक उसके लिए एक पड़ाव रखा है एनसीएसएम ने, दैट इज NTET, नेशनल टीचर्स एलिजिबिलिटी टेस्ट। उसको कैसे प्रिपेयर करना है, उसके बारे में थोड़ी इंफॉर्मेशन एक मैं आपके सामने पेश करने जा रहा हूँ। इट्स अ कोलैबोरेटिव एक्टिविटी बिटवीन द टुडेज आयुर्वेदा प्लेटफॉर्म एंड द आयुर्वेदा टीचर्स एसोसिएशन। नेक्स्ट, वेलकम टू द NTT प्रिपरेशन। व्हाट इज एन NTT? तो नेशनल टीचर्स एलिजिबिलिटी टेस्ट फॉर, अभी हम जिस जॉनरा में हैं, हम जिस कार्य क्षेत्र में काम कर रहे हैं, वो है आयुर्वेदिक एजुकेटर्स। एजुकेटर्स वर्ड इसलिए इस्तेमाल कर रहा हूँ, सब तो क्लिनिशियन है ही, सब पेशेंट देखते हैं, सब प्रैक्टिस करते हैं, बट जब ज्ञान बांटने की बारी आती है, तो ज्ञान जो है हम लोग जो बांटते हैं सारे स्टूडेंट्स को, तो उसको एक स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन से होना चाहिए। सो द टर्म इट इज यूज हियर इज एजुकेटर्स। व्हाई दिस सेशन? टू बूस्ट द कॉन्फिडेंस, क्लैरिफाई द सिलेबस ऑफ NTT एंड एस योर प्रिपरेशन रिगार्डिंग द NTT। लेट्स शेप द फ्यूचर ऑफ आयुर्वेदिक एजुकेशन। अभी आयुर्वेदिक एजुकेशन के जो डिफरेंट डिफरेंट हॉराइजन्स है, वो चेंज होते जा रहे हैं, स्किल लैब्स बनती जा रही है। अभी लेटेस्ट PG का जो MSR आया है, उसमें सिमुलेशन जो है वो भी ऐड कर दिया है। बहुत सारे कॉलेजेस में ऑलरेडी है सिमुलेशन। मैं डॉक्टर DY पाटिल कॉलेज ऑफ आयुर्वेदा एंड रिसर्च सेंटर पिंपरी में था, वहाँ पे डॉक्टर नितिन चांदुरकर सर थे। उन्होंने वो जब फेसबुक का उनका एक एप्लीकेशन आया था, तो वर्चुअल रियलिटी से एनाटोमी का वो पढ़ा रहे थे, तो वो भी MSR में भी आ गया। सो द अकॉर्डिंग टू द न्यू जनरेशन, हमें उस तरह से इवॉल्व होना पड़ेगा, और ये सब टेक्नोलॉजी ऐड करना पड़ेगा, और उसके अकॉर्डिंगली टीचिंग करना पड़ेगा। सो द वर्ड इज यूज हियर, एजुकेटर्स। तो NTT सबसे पहले क्या होती है, आपको कैसे पता चलेगा? तो मोस्टली प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर हम लोग ग्रॉसली देखेंगे। यहाँ पे हाइपरलिंक है, तो डायरेक्ट ओपन हो गया है। सो ऐसे आपको क्वेश्चंस रहते हैं। मैं टू द पॉइंट जाता हूँ, क्योंकि इस समय अपने पास पर्याप्त नहीं है। उसके लिए थोड़ा और डिटेल में चाहिए था मेरे को, 2-3 घंटा रहता, मगर अभी 40 मिनट में पूरा कवर करके आपको बता दूं। तो मोस्टली कैसा है, जब आप सिलेबस देखते हो NTT का, तो एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर आपको 2 लैंग्वेज में रहता है, आप देख सकते हैं स्क्रीन पे। तो ये क्वेश्चंस रहते हैं, एंड दीज आर द टू डेवलप द क्रिटिकल थिंकिंग अबाउट द एजुकेशन। मैं स्क्रॉल करते जाऊंगा और डिक्टेशन करूंगा। तो ये जो पेपर रहा है पिछले साल का 2024 का, तो उसमें डिफरेंट डिफरेंट क्वेश्चंस थे, टाइप ऑफ MCQ थे। तो ये जो था मल्टीपल चॉइस ऑफ क्वेश्चंस में, आपको जो क्वेश्चंस है वो पहला जो पैटर्न हमने देखा वो था नॉर्मल वाला, उसको बोलते हैं निगेटिव स्टेम। नॉट वर्ड आया तो उसको बोलते हैं निगेटिव स्टेम। नेक्स्ट, अरेंज द फॉलोइंग प्रॉपर सीक्वेंस, तो ये हो गया है सीक्वेंसिंग टाइप ऑफ MCQ। नेक्स्ट, मैच द पेयर्स। थोड़ा सा रीडिंग में भी टाइम जाता है, और इट्स क्वाइट टफ वन। फिर असर्शन रीजनिंग जाते हैं। तो ये एक आपके सामने, सभी के सामने है, आपके पास भी है। मैं खाली एक आपको प्रयास कर रहा था कि कैसे क्वेश्चंस आते हैं। ऐसा नहीं कि सिंपल MCQ आपको पूछे जाएंगे। मोस्टली क्वेश्चंस जो रहते हैं यहाँ पे, वो थोड़े से घुमा के रहते हैं। तो उस तरह से आपको यहाँ पे आगे जाना है। तो ये रहा आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर NTT का। नेक्स्ट, तो इसका सिलेबस कुछ है क्या सर? तो सिलेबस हम आपके सामने लेके आ रहे हैं।
अकॉर्डिंग अभी अपेंडिक्स 2 जो है, पेज नंबर मेरे ख्याल से 38, पेज नंबर 38 में ये है। मैं वापस से चालू कर रहा हूँ, थोड़ा सा लैग हो रहा है, लोडेड। हम लोग डायरेक्टली पेज नंबर 38 पे जाएंगे, वहां पे इंडेक्स 2 में ये सिलेबस बताया। तो ये सिलेबस आपको कवर करना होता है एनटीटी में। मैं फुल स्क्रीन कर रहा हूँ। सो टीचिंग कंसेप्ट हो गया, ऑब्जेक्टिव्स हो गया, लेवल ऑफ टीचिंग हो गया, इसके बारे में क्वेश्चन पूछते हैं। आपको करना क्या है, ये सिलेबस धीरे 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 जो भी इसके बुक्स है, जो भी इसका मटेरियल है, स्टडी मटेरियल, वो आपको कवर करना है। बीच में ये मवाक भी आ जाता है। फिर पहला टीचिंग हो गया, फिर सेकंड इज कम्युनिकेशन, देन क्लासरूम मैनेजमेंट। आई एम रैपिडली थोड़ा रीड फास्ट में पढ़ रहा हूँ यहाँ पे। नेक्स्ट, असेसमेंट मेथड्स। आप ग्रेडेशन जो बोलते हैं कि कौन सी ग्रेजुएट फर्स्ट क्लास मिला, डिस्टिंक्शन मिला, ये सब चीजें जो है वो इसके अंदर आती है। फिर इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, आईसीडी जिसको बोलते हैं, मूक्स बोलते हैं, स्वयं वगैरह है। तो ये सब सारी चीजें फिफ्थ पॉइंट के अंदर आती है। सिक्स्थ आता है एजुकेशन साइकोलॉजी। एजुकेशन साइकोलॉजी कैसी होनी चाहिए, पिगेट थ्योरी वगैरह, ये सब इसमें आता है। नेक्स्ट इज एंड्रोगोगी इन द एजुकेशन। दो तरह की होती है, एक होती है एंड्रोगोगी और एक होती है पेडागोगी। एंड्रोगोगी मोस्टली अडल्ट के लिए होती है। पेडागोगी जो होती है मोस्टली छोटे बच्चों के लिए होती है। उसमें धीरे धीरे सारे आइडियाज पुट ऑन करने होते हैं। पिछले जब पहला नोटिफिकेशन आया था तो एजुकेशन पॉलिसीज भी थे, बहुत ज्यादा सिलेबस हो रहा था तो उसको निकाल दिया। तो फिलहाल ये 2025 का फाइनल वाला सिलेबस का अपने पास है। आपको अभी 8 ही टॉपिक प्रिपेयर करने हैं। नेक्स्ट, वह एनटीटी। एनटीटी गवर्नमेंट ने क्यों रखा, गवर्निंग बॉडीज जो है उन्होंने क्यों रखा है? तो मोस्टली ऐसा है कि एक क्वालिटी एजुकेशन, अभी हम लोग आयुष के लोग, स्पेशली आयुर्वेदा, कनेक्ट हो रहे हैं डब्ल्यूएचओ के साथ, यूनेस्को के साथ। अभी आप जामनगर में भी इनका एक सेंटर ओपन होते जा रहा है, शायद नेसरी मैडम उसको लीड करेंगे या और कुछ भी। मेरे को उतनी इन्फॉर्मेशन नहीं है। फिर भी अभी नेसरी मैडम अगर आए हैं एज अ डायरेक्टर, पहले डायरेक्टर थे, दिल्ली में थे, तो उसके अच्छे के लिए क्वालिटी एजुकेशन बच्चों को आने चाहिए। तो क्वालिटी एजुकेशन कौन देगा? अच्छा एजुकेटर देगा। इसलिए एनटीटी गवर्नमेंट ने इंट्रोड्यूस करी है। ऐसा नहीं कि आपको हर्डल में डालने के लिए, आप पीजी स्टूडेंट होते हो, एज आयुर्वेदा स्टूडेंट आपको आयुर्वेद अच्छे तरीके से समझता है, मगर हाउ टू टीच, ये जो पार्ट है उसके लिए उन्होंने आपको ये एनटीटी कंपलसरी किया है। नेक्स्ट, अभी थोड़ा सा आयुर्वेदा टीचर्स एसोसिएशन के बारे में मैं आपको बताना चाहूंगा। आयुर्वेदा टीचर्स एसोसिएशन किस किन चीजों पे फोकस करता है, ये थोड़ा सा एमएन वेबसाइट में है, आयुर TASSO.org। इसमें आपको सब यहाँ पे देखने को मिलेगा कि आयुर्वेदा टीचर्स एसोसिएशन बेसिकली टीचर्स की नीड, उनका पीएफ हो रहा है, उनका लीव के बारे में कुछ समस्या है, सैलरी के बारे में समस्या है, टीचर कोड रिलेटेड कुछ समस्या है, तो ये सारी चीजें इन वन एक प्लेटफॉर्म है आपके लिए, वो ये सब सॉल्व करता है। और इसके जो मेंबर्स हैं इनके डेली वीकली मंथली मीटिंग्स रहती है। लास्ट ईयर एक उनका एक अच्छा प्रोग्राम भी हुआ था पूना में। ऐसे उनके सेमिनार्स वगैरह चलते रहते। सो दे आर द प्लेटफॉर्म टू कनेक्ट द टीचर्स। और ये अभी पैन इंडिया बहुत अच्छा काम कर रहा है। तो ये आयुर्वेदा टीचर्स एसोसिएशन टीचर्स के लिए है। और आप आगे जाके टीचर्स ही बनने वाले हो, आप अगर एनटीटी प्रिपेयर कर रहे हो, तो इसके लिए मैंने थोड़ा सा आपको इंट्रोड्यूस करवाया है। नेक्स्ट, आपका भी सबसे इंपॉर्टेंट सवाल, मैं एनटीटी प्रिपेयर कर रहा हूँ तो व्हाट इज द स्टडी प्लान, डिवाइड द सिलेबस। सबसे पहले आप डिवाइड करो, फिर उसका ब्रेक द सिलेबस इनटू मैनेजेबल सेक्शंस, एलोकेट मोर टाइम टू द वीकर एरियाज सच एज एजुकेशनल पॉलिसी एंड द सब्जेक्ट स्पेसिफिक टॉपिक्स while maintaining the regular revision of the stronger ones. डेली एंड वीकली गोल्स क्या होने चाहिए? सेट अ रियलिस्टिक टारगेट्स, एग्जांपल कवरिंग द टीचिंग ट्रेनिंग इन वन वीक और द रिवाइजिंग द की कॉन्सेप्ट। यहाँ पे कॉन्सेप्ट्स को सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस है आप जब एनटीटी प्रिपेयर करते हो, है ना? तो जैसे आप कॉन्सेप्ट ग्रास कर पाओगे तो क्वेश्चन कैसे भी पूछे, असर्शन रीजनिंग पूछे, निगेटिव स्टेम पूछे, सीक्वेंसिंग पूछे, आपको उसका आंसर अच्छे से
आता है और वो पिक कर पाते हो। ये आपको टॉपर बनाने के लिए कोई एग्जाम नहीं है। आप आप टॉपर आओ या आप 51 मार्क लो, ईच एंड एवरी स्टूडेंट इज अबव 50 इज सेम लेवल। ठीक है। टाइम मैनेजमेंट भी इंपॉर्टेंट है। अभी फिलहाल के लिए अभी अपने पास 1 महीना पकड़ो, तो डेडिकेटेड 4 to 6 आवर्स डेली, बैलेंसिंग देयर थ्योरी प्रैक्टिस एंड रिवीजन थोड़ा थोड़ा आप कर सकते हो। प्रैक्टिस मतलब एमसीक्यूज आप सॉल्व जितना ज्यादा करोगे उतना आपका माइंड उस तरह से सेट होगा। यूज अ सिस्टेमिक कैलेंडर टू ट्रैक द प्रोग्रेस एंड इंश्योर ऑल द टॉपिक्स आर कवर्ड। ये हो गया एक स्टडी प्लान। वही मैंने इसमें वो इमेज थी, ये मैंने इन द वर्ड्स लिखा है। प्रैक्टिस कैसे करें, तो प्रैक्टिस विद द मॉक टेस्ट एंड द प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। आप उसको ओवरलुक करो तो आपको पता चलता है। अभी फिलहाल अपने पास एक ही प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है, क्योंकि एक ही एग्जाम हुई है। मॉक टेस्ट जो मिलिंद चतुर्भुजी सर है पारुल यूनिवर्सिटी के, वो भी कनेक्टेड है, उनका विद्यावर्धन करके प्लेटफॉर्म में, उनके भी मॉक टेस्ट अच्छे रहते हैं। हमारा जो टुडेज आयुर्वेदा है, उनके भी हमारे भी मॉक टेस्ट काफी हद तक स्टूडेंट का रिस्पॉन्स अच्छा आया है। और मैं कोशिश करता हूँ टुडेज आयुर्वेदा प्लेटफॉर्म में कि जैसे पहला मॉक टेस्ट था वो थोड़ा इजी था, सेकंड तो उससे उससे थोड़ा टफ था। जितना टफ आप प्रैक्टिस करोगे उतना जो पेपर है आपको इजी जाने वाला है। So, mock test regularly take a full stack mock test to stimulate the exam condition. This helps to improve the speed, accuracy, and familiarity with the format. Analyze your performance to identify the weak area. Weak area कौन से आपको समझ में आ गया तो आप आगे जा सकते हो। ये आपका एनालिसिस, बट ऑब्वियस हमारा एप्लीकेशन है तो उसमें आपको मिल जाता है। अगर नहीं मिला सो यू कैन डिस्कस विथ मी और डॉक्टर श्याम सुंदर काकानी सर, वो थोड़ा आज बिजी है। कोई दूसरे प्लेटफॉर्म पे अगर हम लेक्चर लेंगे तो उनको भी इंट्रोड्यूस करवाएंगे, तो आप डिस्कस कर सकते हो। वी विल डेफिनेटली गाइड। अगर आपको ऐसा लगता है तो जैसे मेरी जब बात हुई थी राहुल सूर्यवंशी सर ने से, तो वो बोले कि आप एक आध घंटा एटीए के जो प्लेटफॉर्म वाले बच्चे हैं उनके थ्रू आते हैं, क्योंकि डिफरेंट डिफरेंट फोरम है इनके एटीए के। तो एटीए का कोई स्टूडेंट से आता है तो वी विल डेफिनेटली सॉल्व दिस इशू। ओके। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर आप पूरा सॉल्व करके देखिए, आपका फिर पढ़ाई हुआ है नहीं हुआ है उसके अकॉर्डिंगली। ऐसा मत रखिए कि एक मॉडल आंसर दिया था, आपके मन में उसके आंसर्स क्या आ रहे हैं, व्हाट दैट टाइम व्हाट इज योर परसेप्शन, परसेप्शन, उसके अकॉर्डिंगली आप करना चाहिए। टाइम मैनेजमेंट करना चाहिए। 120 क्वेश्चन है और वो बड़े बड़े क्वेश्चन रहते हैं, तो 1 मिनट में क्वेश्चन, 1 मिनट 20 सेकंड तक आप जा सकते हैं बड़े क्वेश्चन में। छोटे निगेटिव स्टैम्प फटाफट सॉल्व करो, एसेट से रीडिंग फटाफट सॉल्व करो। मैच द पेज के लिए थोड़ा ज्यादा टाइम दो, ऐसा आप कर सकते हो। नेक्स्ट, रेफर्ड बुक एक लिस्ट है एनसीएसएम की, वो हम आप भी देखेंगे। तो ये रिकमेंडेड बुक बाय द एनटीटी है, टीचिंग एंड ट्रेनिंग कम्युनिकेशन, कुलक्षेत्र वगैरह, ये सारी लिस्ट हमारे एप्लीकेशन में आपको फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल रहेगी, फ्री कंटेंट के अकॉर्डिंगली सबको ये रीडेबल है। इसमें से ज्यादा मैंने कोशिश की है, जितनी मुझे मिली है उतनी मैंने डाल रखी है इन द स्टडी मटेरियल सेक्शन। ओके। सो इतनी सारी बुक्स एनसीएसएम की द्वारा, आई एम जस्ट स्क्रोलिंग डाउन, तो यहाँ तक इतने सारे बुक्स अवेलेबल उन्होंने एक लिस्ट ಪೇಷಂಟ್ ಅಲ್ವಾ ಅವರು? एक सेकेंड, इसका आवाज आ रहा ಓಕೆ. है, इज डिस्टर्बिंग। ಇವರಲ್ಲಿ ಪ್ರಜ್ವಲ್. ಹಾಂ, कर ಶಾರು. म्यूट ऑल कर दिया। सॉरी फॉर द डिस्टर्बेंस बाय द स्टूडेंट। वापस जाते हैं हम लोग स्क्रीन की तरफ, शेयरिंग द स्क्रीन एंड तो लास्ट टाइम हम थे इन द एक सेकंड, कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम हो गया। रेफर्ड बुक पे हम लोग थे, एक सेकंड, हाँ, आगे रेफर्ड बुक पे हम लोग थे। तो रेफर्ड बुक के बाद हम लोग जाते हैं
मैं अभी 2 डेज आयुर्वेदा के प्लेटफॉर्म पे एक फोल्डर मिलेगा आपको, एनटीटी में 2025 रेफर्ड बुक, उसमें ये सारे बुक्स आपको पढ़ने को मिलेंगे। अदरवाइज बहुत सारे आप सर्च कर सकते हो गूगल वगैरह पे, तो वो भी मिल सकते हैं। यू कैन रेफर, इट्स अ स्टडी मटेरियल। ओके। फिर ऐसा हुआ कि वो कंटेंट बहुत ज्यादा हो गया, 18,000 पेजेस तक वो कंटेंट गया। सो हमें इसके ऑनलाइन क्लासेस प्रोड्यूस करने थे। लास्ट टाइम जो था, थोड़ा सा बच्चों को इम्प्रूव करना था मुझे क्वालिटी में, तो हमने क्या करा कि इसके डे वाइज एक लेक्चर सीरीज बनाया हमने, और उसके नोट्स के साथ साथ लेक्चर्स ऐसे हम करते गए। सो ये हमारा जर्नी था डे 1 से लेके आगे हम लोग गए। डे 48 तक हमने सिलेबस पूरा कवर करा है। और डे 48 के बाद 3 लेक्चर और हुए हैं। अभी जो लोग हमसे जुड़े हुए 2 डेज एनिवर्सरी थे वो जानते हैं कि टर्मिनोलॉजी करके एक होता है, जैसे ग्लोसरी होता है ABCD हर लैंग्वेज का, तो उस तरीके से हमने अभी तैयार करना चालू किया है। तो 3-4 बुक्स के हमारे हो गए, तो मोस्टली 11,000 के करीब करीब वो पॉइंट आ जाएंगे ग्लोसरी। तो ग्लोसरी में क्या होता है कि जो टर्म ऑप्शन जो आपको क्वेश्चन पेपर में दिखते हैं, कि वही ऑप्शंस का अगर मतलब आपको पता है, तो आप जल्दी पिक कर पाते हो आंसर। ठीक है। तो इस तरह से वो हमने नेक्स्ट 50 लेक्चर, मतलब 49 और 50 लेक्चर वो हुए। अभी आगे भी प्लानिंग है। नेक्स्ट हमारे यूट्यूब चैनल पे आप सब ये देख सकते हो। सो एक वो भी है, अभी टाइम कम है तो मैं यूट्यूब चैनल नहीं वहाँ पे दिखाने वाला हूँ। नेक्स्ट डेली असाइनमेंट सेशन हमारा टेलीग्राम पे चलता है। तो ये उसका लिंक है। अगर टाइम मिला तो मैं लेके जाऊंगा आपको, उसका मैं स्क्रीनशॉट दिखा देता हूँ। ऐसे हमारे क्वेश्चंस रहते हैं। ये सबके लिए फ्री है, ऐसा नहीं कि पेड है। ये टेलीग्राम का डेली असाइनमेंट होता है। आप जितना ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना आप वो साइकोलॉजी में चले जाओ कि हमें एग्जाम में कैसे क्वेश्चन आने वाले। अभी यहाँ में मैंने क्वेश्चन दिया, आई एम गोइंग टू रीड। अरेंज द लर्निंग एक्टिविटीज इन द करेक्ट पेडागोगिकल फ्लो। पहला है एप्लीकेशन ऑफ द कॉन्सेप्ट, सेकंड है असेसमेंट ऑफ द अंडरस्टैंडिंग, थर्ड है कॉन्सेप्ट इंट्रोडक्शन एंड ग्रुप एक्सप्लोरेशन। तो इसका आंसर है 3142। ओके। 3142 मतलब पहले करना है कॉन्सेप्ट का इंट्रोडक्शन, सेकंड है ऐसे फिर फर्स्ट है एप्लीकेशन ऑफ द कॉन्सेप्ट, फिर नेक्स्ट है ग्रुप एक्सप्लोरेशन, और फाइनल आएगा असेसमेंट ऑफ द अंडरस्टैंडिंग। तो ये सीक्वेंस लगाना, ये आपको 30 सेकंड के अंदर सोचना है, और 30 सेकंड 20 सेकंड पर रीड करना है, क्वेश्चन और आंसर लिखना है। तो ये हमारा ये टेलीग्राम पे चलता है। टेलीग्राम क्यों यूज करते हो सर, क्या खासियत है टेलीग्राम में? तो टेलीग्राम की ये खासियत है कि उसमें प्रीवियस हिस्ट्री दिखता है। व्हाट्सएप में मैं कभी नहीं डालता, क्योंकि पिछले जो बच्चे नए ज्वाइन होंगे उनको तो कुछ उसका फायदा रहेगा ही नहीं, क्योंकि वो पढ़ ही नहीं पाएंगे पिछले मैसेज, इसलिए मैं टेलीग्राम पे डालता हूँ। ओके। नेक्स्ट यहाँ पे लेक्चर हमारा खत्म होता है। किसी को अगर कुछ डाउट्स है या कुछ पूछना है तो पूछ सकते हो। तब तक मैं आपको लेके जाता हूँ अपने यूट्यूब चैनल पे। ओके। 10 मिनट है अपने पास, तो वी कैन शो यू आवर एफर्ट्स एज अ टुडेज आयुर्वेदा प्लेटफॉर्म। लेट मी चेक व्हाट हैपेंस हियर। लोडिंग चल रहा है। किसी को कुछ क्वेश्चन है तब तक मुझे पूछ सकते हो। सर एग्जाम कितने मार्क्स की होती है? एग्जाम बेटा 100 मार्क्स की होती है। निगेटिव अच्छा। निगेटिव जो मार्किंग रहता है ऐसा कुछ इसमें है नहीं। अच्छा, इलिजिबल क्राइटेरिया 50 यस, प्लस होगा ना? 50% मार्क्स का रहेगा। उसमें से एक आधे क्वेश्चन को अपन ये निकाल देते हैं, उसका क्वेरी निकाल देते हैं। अभी ये थोड़ा लैगिंग होगा तो यही रहने देते हैं। तो उसके मार्क्स एक्स्ट्रा मिल, लास्ट टाइम एक क्वेश्चन था, एक क्वेश्चन में ऐसा आपको एक्स्ट्रा मार्क्स दिए गए थे एनटीटी की तरफ से। तो इसीलिए बहुत सारे बच्चे पहले इलिजिबल नहीं थे, 1-2 मार्क उनको कम हो अच्छा। गए थे, फिर सब इलिजिबल हो गए, मतलब मोस्टली इलिजिबल हो गए। और जिन्होंने पढ़ाई नहीं करी उनके बारे में मैं बोल ही नहीं सकता, ऐसा है।
और कुछ। अच्छा, और यानी हम सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हैं यस नेगेटिव यस मार्क? डेफिनेटली, आपको पूरा पेपर कवर करना है। खाली कैसा है कि इसमें थोड़ा लेंदी है, तो जो स्ट्रेटेजी ऐसी होनी चाहिए कि पहले निगेटिव स्टेम जिसमें नॉट वर्ड आया वो निगेटिव स्टेम एमसीक्यू होते हैं, असर्शन रीजनिंग उसके अच्छा। बाद कीजिए। जो बड़े क्वेश्चन है, मैच द पेयर हो गया या सीक्वेंसिंग हो गया, जिसमें थोड़ा ज्यादा क्रिटिकल थिंकिंग यूज करना है आपको, वो आप थोड़ा हाँ। बाद में कीजिएगा। और टॉपिक वाइज में देखूँ तो एजुकेशनल साइकोलॉजी का टॉपिक थोड़ा सा मतलब हेवी है पढ़ने के लिए, तो वो आप लास्ट में उसके क्वेश्चन सॉल्व कीजिएगा, ऐसा। अच्छा, यानी जो नोट वाले क्वेश्चन होते हैं वो पहले अटेम्प्ट करने यस हैं, यस, और नॉट मैथ। नॉट वाले क्वेश्चन पढ़ना ही, पढ़ते समय ही दिमाग में रखना कि ये अपने को जल्दी सॉल्व करना है। तो टाइमिंग कवर अच्छा। ऐसा हो जाएगा। वैसे कभी कोई बच्चा ऐसा मुझे मिला नहीं कि उसको टाइम मैनेजमेंट प्रॉब्लम आए, फिर भी मैं कोशिश करूंगा कि जितना जल्दी से जल्दी क्वेश्चंस आप वो तरह से सॉल्व करें। मेरा फर्स्ट अच्छा। प्रेफरेंस रहता है बच्चों को कि आप निगेटिव स्टेम पहले सॉल्व कीजिएगा, सेंसर रीजनिंग बाद में सॉल्व कीजिएगा, देन यू गो फॉर द मैच द पेयर एंड ऑल द टाइप। अभी ऐसा नहीं है कि इतने ही क्वेश्चन पूछेंगे, इसमें और एक क्वेश्चन रहता है केस बेस्ड, मतलब पीबीएल, प्रॉब्लम बेस्ड हाँ हाँ। लर्निंग। तो उसमें एक केस दी रहती है, वो केस आपको सॉल्व करनी होती है। मतलब फॉर Yes. एग्जाम्पल, एक बच्चा है जिसको बहुत शरारत करता है, और बहुत शरारत करने के बाद पूरी क्लास डिस्टर्ब करते हैं, तो आप उसके साथ क्या करेंगे, ये केस रहती है। तो उसमें आप चार अच्छा। ऑप्शन रह गया, उसमें से आपको सिलेक्ट करना होता है। ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। आप अगर हमारा टेलीग्राम चैनल अगर ज्वाइन करते हो तो ऐसे ढेर सारे क्वेश्चंस आपको प्रैक्टिस के लिए पिछले वाले मिलेंगे, देखने को मिलेंगे। और डेली हम लोग अगर मुझे टाइम नहीं मिला तो ही, अदरवाइज मैं पहले 3 डालता था, अभी 5 क्वेश्चन डालता हूँ, जैसे जैसे एग्जाम पास में आए। ओके सर, ओके ओके, चलेगा। थैंक यू सर। ओके, थैंक यू सर। मेरे ख्याल से टाइम भी ज्यादा नहीं बचा है, वी आर गोइंग टू एंड हियर। मैं थैंक यू का स्लाइड लगा देता हूँ। किसी को और कुछ क्वेश्चन है, पूछना है? बहुत सारे क्वेश्चंस आ रहे हैं मन में बच्चों के कि सर हमारा तो पीजी परस्यूइंग है, हम क्या क्या करें। तो उसके जो भी अपडेट्स आते जाते हैं वहां से, एनटीए से या एनसीएसएम से, वो हम लोग आपसे शेयर करते जा रहे हैं इन द ग्रुप। मतलब हमारा टेलीग्राम के एक ग्रुप है, व्हाट्सएप के 2 ग्रुप है फिलहाल। पहला ग्रुप फुल हुआ है तो सेकंड ग्रुप चालू किया। नमस्ते सर। हाँ बोलिए। सर 30 मंथ्स कंप्लीशन होना ही चाहिए सर पीजी में, फिलहाल तो वो उन्होंने अप्लाई करने के लिए। उसके उसके पीछे एक नोटिफिकेशन भेजा है, मैं देखता हूँ अगर यहाँ पे टेलीग्राम में लेके जाओ डायरेक्टली स्लाइड शो करके। स्क्रीन आपको दिख रही होगी, एक लास्ट नोटिफिकेशन था इसमें, मैं वो डाला था ग्रुप में। तो अगर लोड होता है जल्दी तो अच्छा रहेगा। ये अपना सर व्हाट्सएप ग्रुप मिल सकती है क्या? हाँ, व्हाट्सएप ग्रुप की भी लिंक मैं यहाँ पे डाल दूंगा। ये ये क्वेश्चंस रहते हैं अच्छा। हमारे। ये अभी अच्छा। बर्थडे जो है, मेंटर बर्थडे, तो ये चल रहा है अभी अपना ऑफर। काकानी सर और मैं दोनों ये प्लेटफॉर्म चलाते हैं, 2 डेज आयुर्वेदा करके है। और अच्छा। क्या था, इसने एक पूछा था क्वेश्चन, शायद वो मैं डाला व्हाट्सएप पे डाला है, या आज के प्रोग्राम का था। एक सेकेंड। हाँ, टर्मिनोलॉजी मेरे को दिखाना था, अभी टाइम है 2-3 मिनट, तो वो आपको दिखा देता हूँ। ऐसे हमने एक नया इवेंट चालू किया था, एक सोच यूएसपी बोल सकते। तो एक छोटे छोटे वर्ड्स रहते हैं, वो कॉग्निटिव लोड हो गया यहाँ पे, स्कीमा हो गया, मेरे ख्याल से थोड़ा बड़ा कर दो। हाँ। तो इसका मतलब अगर आपको पता है और वो वहां पे ऑप्शन में दिखता है, तो आप पटक से उसको एकदम अच्छे से पिक कर पाओगे कि ये बराबर आंसर है। तो ये एक एक्टिविटी हमने चालू किया, जो हमारे यूजर्स हैं उनको हम लोग दे रहे हैं। और जो ये सैंपल था ये हमने एक आपके सामने लेके आया। तो मेरे ख्याल से ये आपको 200 क्वेश्चंस, हाँ 200, स्कॉलरशिप ऑफ टीचिंग एंड लर्निंग, एसओटीएल। एसओटीएल मतलब कुछ समझ में नहीं आएगा अगर एमसीक्यू में पूछा।
व्हाट इज उसके बारे में कुछ तोड़ मरोड़ के पूछा है, तो ये हमारा प्रयास रहेगा 11,000 के ऊपर टर्मिनोलॉजी हम लोग देखेंगे। ये आपको रीड करके छोड़ देना है, 2 या 3 बार रीड करके छोड़ देना है, तो एक आपके माइंड में एक पॉइंट बैठेगा कि मुझे ये ऑप्शन दिखेगा तो इसका एक आंसर लिखना है। जैसे मूक हो गया, मूक बहुत बार पूछते हैं, मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्स, इसके बारे में बहुत बार पूछते हैं, और ये प्लेगरिज्म के बारे में भी पूछते हैं, कॉपीराइट के बारे में भी पूछते हैं। तो ऐसे हर बुक के 11 बुक अपने पास अवेलेबल है, तो उस बुक के अकॉर्डिंगली हम लोग एक्सट्रैक्ट करे जा रहे हैं, टीम वर्क कर देते हैं, ऐसा है। गुड इवनिंग सर, मुझे एक डाउट है। हाँ बोलिए मैडम। ये एनटीईटी का कोई ग्रुप है क्या? मतलब व्हाट्सएप ग्रुप या ऐसा कुछ? मगर जो रेफर्ड बुक की लिस्ट मैंने स्टार्टिंग में बताई आपको, वही एनसीएसएम ने हाँ फिलहाल मिलिंद चतुर्भुजी सर का विद्यावर्धन का है, चौखम बाका के बुक्स है। मगर मैं कोशिश ये करता हूँ कि अभी ये एक टर्निंग पॉइंट आ जाता है आपका, तो आप प्रॉपर नोट्स और पढ़ाई करके ही इसमें आगे जाए। बुक्स में अगर वो पॉइंट नहीं कवर हुआ हो और वही क्वेश्चन पूछ लिया, तो आपके मार्क्स में कटौती हो सकती है। सो बेटर वे टू, यू शुड रेफर्ड बुक आप देखिए, उससे नोट्स निकालिए। अगर आपके पास टाइम नहीं है, यू कैन ज्वाइन विद अस, वी विल डेफिनेटली गाइड यू टू क्रैक द एग्जाम, क्योंकि इसकी तो बुक्स में मुझे ऐड कर दीजिए ना। हाँ ऐप का लिंक, हाँ मैं ये टेलीग्राम में अगर ज्वाइन होते हो तो इसमें ऐप का लिंक में मैं डाल देता हूँ, पहले भी डाला हुआ है, हाँ मैं मगर मैसेजेस नहीं देख सकते बच्चे, तो मैं अभी डाल देता हूँ, ठीक है। अच्छा। और आपने जो बुक्स की लिस्ट दी है वो काफी बड़ी है, तो वो हाँ सभी मेरे पास अभी 11 से लेना 12 जरूरी बुक्स है क्या? अवेलेबल है मैडम, अदरवाइज उसकी 11 क्या? हार्ड कॉपी, मतलब एक टोटल हाँ चैप्टर तो 8 है, एक एक चैप्टर के एक हाँ पढ़ लिया, दैट्स इनफ फॉर द कॉन्सेप्चुअल पार्ट। तो मोर हाँ। देन इनफ हम लोग देने की कोशिश कर रहे हैं, अगर कुछ आगे जाके मिला बाय एनी सोर्सेस, हाँ डेफिनेटली प्रोवाइड। और ये सबके लिए फ्री है, क्योंकि वो मेरा कॉपीराइट नहीं है, वो किसी ने बनाया